Hello students, continuing with our revision of chapter 9 sequence and series. Today we will be studying arithmetic mean. Now what is arithmetic mean? It is a number which actually connects two given numbers so that they are in AP. Now we can have only one arithmetic mean between two numbers and maybe n arithmetic means. So if we want to have a look at one arithmetic mean, there are two given numbers a and b. If we insert am between them, they are in AP. And when three terms are in AP, their common difference, as we all know, is same. This is the property of arithmetic property. Hence am minus a, बोले तो a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, which is b minus am. am को एक साइड लिया है तो 2am is equals to a plus b और am is equals to a plus b by 2 होगा. So single arithmetic mean between two numbers is a plus b by 2. दोनों को ऐड करके डिवाइड by 2 कर दो. Now if we insert n arithmetic means between two numbers a, given numbers a and b, so a, a1, a2, a3 up to an comma b will be in AP and total terms n तो arithmetic means हमने insert करे और दो numbers a और b हमें दे रखे थे तो total numbers will be n plus 2. So b will be n plus 2th term and formula of an is a plus n minus 1 into d से b की वैल्यू हो जाएगी a plus n plus 2 minus 1d. सो d की वैल्यू b minus a upon n plus 1 होगी. डायरेक्टली d की वैल्यू b minus a upon n plus 1 हम याद रख सकते हैं. b बाद वाली टर्म है, a फर्स्ट टर्म है और n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड. सो वैल्यू ऑफ a1 विल बी a plus d, वैल्यू ऑफ a2 विल बी a plus 2d एंड वैल्यू ऑफ an विल बी a plus nd. ठीक है. टू टेक एग्जाम्पल this particular case we have taken example 8 where 3 and 24 two numbers were given और 6 arithmetic means a1 a2 a3 a4 a5 a6 इसमें insert करने थे. So value of b is 24, value of a is 3, value of n is 6. So as we all know the formula for d is b minus a upon n plus 1. 24 minus 3 upon 6 plus 1 पुट किया तो d की वैल्यू 3 आ गई. a1 की वैल्यू a plus d which is 3 plus 3, 6. a2 की वैल्यू a plus 2d which is 3 plus 2 into 3 that is 9. Value of a3 will be a plus 3d, a plus 3 into 3 that is 12. Value of a4 will be a plus 4d which is 3 plus 4 into 3 15. Similarly a5 is 18 and a6 is 21. So this is how you can insert certain numbers between two given numbers. Now in question 15 of exercise 9.2 we have a question that a की power n plus b की power n upon a की power n minus 1 plus b की power n minus 1 is arithmetic mean between a and b. So what is the value of n? So since it is arithmetic mean हमने इसको a plus b by 2 लिख दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 2an plus 2bn. b की पावर n is equals to a plus b into a की पावर n plus b की पावर n minus 1. a की पावर n minus 1 plus b की पावर n minus 1. So 2an plus 2bn will be a into a की पावर n minus 1 plus b into a की पावर n minus 1 plus a into b की पावर n minus 1 plus b into b की पावर n minus 1. और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल्स टू b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू b की पावर n माइनस 1. Although we have studied this question earlier also, so you can refer to that thing. Okay, now एक को इधर ले जाएंगे और एक को इधर ले जाएंगे. So it becomes a की b की पावर n माइनस a इंटू b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू b इंटू a की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n. लेफ्ट हैंड साइड में से b की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास बचेगा b माइनस ए. राइट हैंड साइड में से a की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास बचेगा b माइनस ए. b माइनस ए कैंसल्ड. b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू a की पावर n माइनस 1. दोनों पे पावर सेम है तो डिनोमिनेटर में एक ले गए और इट बिकम्स b अपॉन a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. और क्योंकि हमें इंडाइसिस की फॉर्म में इसको कंपेयर करना है तो हमने लिख दिया b अपॉन a की पावर 0. सिंस किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है
अब ये केस हो गया बेस सेम पावर सेम, सो बेस बी अपॉन ए दोनों साइड सेम है, इसलिए पावर्स n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 और n की वैल्यू 1 होगी. सो in this way we can solve these kind of questions. Now coming to question 18 which was asked yesterday, there is a polygon whose first minimum angle is 120 degree and the common difference is 5. Find the sides of the polynomial. So in class 10 you might have studied the sum of all interior angles of a given polygon is 2n minus 4 into 90 degree. सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होता है. सो एस एन इज इक्वल्स टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री. एस एन का फॉर्मूला ए पी के हिसाब से n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है. यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी 5n स्क्वायर प्लस 235n इज इक्वल्स टू 360n माइनस 720. तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर हो गई n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से n की वैल्यू 9 और 16 आती है. सिंस n इज इक्वल्स टू 9 पे ये आंसर हमारा आ जाता है, इसलिए 16 हम नहीं लेते हैं. ऐसा मैं पहले भी बता चुका, क्योंकि 10th से लेके और 16 टर्म का सम अगर दो आंसर आते हैं तो इसका मतलब 10th से लेके 16 टर्म तक का सम 0 है और एंगल्स में ऐसा नहीं होता. दैट इज़ वाई n इज इक्वल टू 9 इज आवर आंसर. करेक्ट. इन दिस वे यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 9.2. नाउ कमिंग टू द न्यू कंसेप्ट विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड इट रिजल्ट्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो हम क्या कर रहे हैं, r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर टर्म को. फर्स्ट टर्म एज यूजुअल स्मॉल ए, नेक्स्ट टर्म a इंटू आर, फिर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. इन सिमिलर वे ए एन जनरल टर्म विल बी a इंटू आर की पावर n माइनस वन, a इंटू आर की पावर n माइनस वन, वेयर r इज कॉमन रेशो. सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से या थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशो आएगा. वहाँ पर AP में कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पर कॉमन रेशो है. इफ़ यू वांट टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. करेक्ट. तो हमारे पास GP है ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस वन. द फॉर्मूला डिपेंड्स r की वैल्यू कॉमन रेशो एक से बड़ा है कि एक से छोटा है. सो एस एन विल बी a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन व्हेन r इज ग्रेटर देन वन. इट विल बी a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर व्हेन r इज इक्वल्स टू वन. सो AP के GP के केस में अगर कॉमन रेशो 1 हो तो हम उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 0 हो जाएंगे. रिमेंबर दिस. वी विल टेक सम एग्जांपल्स रिलेटेड. सो एग्जांपल 10 says which term of GP 2, 8, 32 and so on is 131072. सो हेयर वी ऑल नो a की वैल्यू 2 है, कॉमन रेशो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो which is 4 and an की वैल्यू 131072 है. एज पर द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म a इंटू आर की पावर n माइनस वन, वैल्यूज प्लेस करें तो 131072 इज 2 इंटू 4 की पावर n माइनस वन. ये पावर 4 पे है, 2 पे नहीं है. जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड को, ये 2 को यहाँ ले गए तो ये बना 65536 इज इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस वन. ये 65536 100% ऑलवेज 4 का कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर n माइनस वन है. तो ये 4 की पावर 8 है. बेस सेम पावर सेम के हिसाब से n माइनस वन इज इक्वल्स टू 8 और n की वैल्यू 9 है. तो ये 131072 इस GP की 9th टर्म है. करेक्ट. नाउ इन एग्जाम्पल 11 वी आर बीइंग गिवन दैट थर्ड टर्म ऑफ अ GP इज 24 एंड इट्स सिक्स्थ टर्म इज 192. 10th टर्म पता करनी है अपने को. तो उसके लिए जैसे AP में A और D पता होना चाहिए, GP में A और R पता होना चाहिए अपने को. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, GP लेट कर लेंगे A AR स्क्वायर एंड सो ऑन. A3 की वैल्यू 24 है, A6 की वैल्यू 192 है. A3 का मतलब AR स्क्वायर 24, इक्वेशन 1. AR की पावर 5 इज 192. इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड किया तो वी गेट R क्यूब इज इक्वल्स टू 8, यानी कि R क्यूब 8 है तो 8 किसी का क्यूब है और वी ऑल नो 8 इज क्यूब ऑफ 2.
So r की वैल्यू 2 आ गई. Put that in equation 1 or 2. We have put it 1. So 2 into r की पावर a इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 24. a की वैल्यू आ गई 6. अब अपने को a और r मिल गया. अब अपन कुछ भी पता कर सकते हैं. तो हमें बोला है a 10 बताओ, वो होता है a इंटू r की पावर 9. करेक्ट. a की वैल्यू हमारे पास है 6, r की वैल्यू है अपने पास 2, तो 2 की पावर 9 क्योंकि कैलकुलेट हो सकता है. इट इज़ 512. So the answer is 3072. Correct. Now in example 12, we are being given that there are certain terms in GP 3, 3 by 2, 3 by 4 and so on, और उनका सम 3069 upon 512 है. 3069 upon 512. So as we all know that value of a here is 3 and r is 1 by 2. सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो, 1 by 2 आएगा, which is less than 1. So formula for Sn will be a into 1 minus r की power n upon 1 minus r. If we place values, 3069 upon 512 is equals to 3 into 1 minus 1 by 2 की power n upon 1 minus half. ये 3 और 1 by 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 3 तो डिवीजन में चले जाएगा और 1 by 2 मल्टीप्लीकेशन में. सो इट बिकम्स 3069 into 1 upon 512 into 3 into 2 is equals to 1 minus 1 upon 2 की पावर n. 1 की पावर n 1 ही होता है, इसलिए 2 की पावर n रहेगा. सो 1 minus 2 की पावर n becomes 1023 upon 1024. So 2 की पावर n is equals to 1 minus 1023 upon 1024 which is 1 upon 1024. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n आ गया 1024. अब अगेन 1024 विल बी 2 की कोई पावर विच इज़ 10. बेस सेम पावर सेम के हिसाब से n की वैल्यू 10 आ गई. ठीक है. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू विल बी एबल टू डू 11 questions of exercise 9.3. only till 11 questions. Solve them, ask your queries by today evening so that in tomorrow's live class we can discuss all of them. Have a good day, study hard and do well.